Hi everyone, a very good morning and a very happy new year to all. This is the third lecture for your chapter Chemical Control and Coordination. We discussed hypothalamus and pituitary glands last time. We also saw how the hypothalamic hormones control the release or secretion of your pituitary hormones, and how pituitary hormones, which are even referred to as tropic hormones or stimulating hormones, they can control the secretions from different endocrine gland. So today we are going to talk about one such endocrine gland, which is your thyroid gland. Okay, we're starting from the top, which was your brain, and now moving downwards, we will be talking about the second most important endocrine gland, which is thyroid gland. Let us first understand the anatomy. That is, where is this gland present? How does it look like? Okay, so if you look at this diagram, this is your epiglottis. Beneath the epiglottis is your larynx. Larynx is also known as voice box. Fine. Underneath larynx is your trachea. So here what you're seeing, the tube-like structure, is your trachea, okay, or windpipe. On this trachea, you can see the butterfly-shaped gland, okay, and this butterfly-shaped gland is known as thyroid gland. It is the largest endocrine gland in the body. This is an important thing to remember, okay? Which one is the largest endocrine gland? The answer will be your thyroid gland. Where is it located? It is located ventrolateral side of trachea. Ventral means in front of trachea, and lateral, because as you can see, if this is the trachea, then on both sides of the trachea, this thyroid gland is present, right? So ventrolateral side of trachea and larynx. So you can see it beneath the larynx in the neck region. So if you have ever seen when you go for a physical checkup to a doctor, then what do? They take out their stethoscope, they check your heart sounds, and then they put the stethoscope on your back and check the lung sounds, and they even look at your pupillary reflex, which is in your eye, okay, when your pupils dilate or they contract, and all of that he checks. After that, sometimes you might have also noticed the doctor also checks for any swollen nodes, okay, or swollen lymph glands. Along with these, even your thyroid gland, okay, it can be checked just by pressing around your neck. So the doctor will know exactly at what place to check if the thyroid gland is swollen or if it is having some trouble. Okay, so this is present in your neck region, and it is very easily you can feel it. Okay, now this gland, it is bilobed. Lobe is this one structure. Okay, so this one whole part is known as lobe. As you can see, there are two lobes, so it is a bilobed gland in H shape or butterfly shaped. Both of the lobes, which is this left one and the right one, they are connected by non-glandular flap. So their connection point is the one which is non-glandular. Non-glandular, glandular matlab, it does not secrete any substances. Okay, so it is just a connective tissue. It is just connecting the two lobes. So this flap here in between is known as isthmus. Okay, isthmus, left thyroid gland, right thyroid gland, and in between isthmus. Now, this specific picture I have taken just to show you where the thymus gland is present. It is not to be misunderstood with thyroid. Okay, thyroid and thymus, though they sound similar, they are different glands. Thymus we will discuss in the next class, but just remember thyroid for now, okay? And know that they are two separate glands. They look a little bit similar. They are present above, near each other, okay? But they are separate glands. So we are going to talk about this gland, which is thyroid. Now, this thyroid gland is endodermal in origin. Now, if you remember, we have discussed that your hypothalamus is ectodermal in origin. Why? Because it is part of your nervous system.
right? Hypothalamus is a part of your diencephalon or forebrain. So all of your nervous system is ectodermal in origin. This also, I hope you remember that in embryo, there are three different layers, okay? Endoderm, mesoderm, and ectoderm. So from the ectoderm, your skin, that is your dermis, as well as your nervous system, they develop, okay? So whatever parts has some nervous system or are modified from nervous system are all ectodermal in origin. I just gave you the example. The example was of your hypothalamus, then posterior pituitary, anterior pituitary. So all of the glands we studied last time were ectodermal in origin. This thyroid gland is endodermal in origin. Fine. Each lobe. Now let us look at each lobe. When you take just one of these lobes, has many follicles. Okay, what are follicles? Follicles are nothing but they are these spherical structures. Okay, they are balloon like structures which are lined with cells. So here can you see the cells? Okay, so these cells are forming the boundary, and in between this cells there is empty space, okay, which is filled with fluid, which we shall discuss later. But basically, this is what you call a follicle. Clear? Remember this term follicle. We will come across this term many times. So if it is spherical, it is made up of a lot of cells. You normally call it a follicle. Clear? So each of these lobes has many such follicles. When you take a cross section and you look at it under the microscope, you will find they are filled with such follicles. These follicles are made, the wall of these follicles is made up of cuboidal. Can you see they look like small cubes, right? So cuboidal glandular cells. Glandular, why? Because these cells are the one which will secrete, okay, our hormone. So they are known as glandular cells. Any cell which is secreting something can be called a glandular cell, especially if it is secreting something in the lumen. Okay, and this is the lumen. Fine. Follicles are scattered in loose connective tissue. Now, between these follicles, there should be something which is filled in between the spaces, right? बीच में जो भी जगह रह जाती है उधर जो भी भरा हुआ होता है, that is your loose connective tissue. And this loose connective tissue that you see in between the follicles is known as stroma. Clear? The cavity of follicles is filled with iodized glycoprotein. See a lot of terms here. Iodized meaning it will have iodine. Glycoprotein is a protein which has carbohydrate attached to it. हम लोगों ने सेल जब पढ़ा था तभी we have discussed, right, that where this glycosylation or addition of glucose and sugar moieties on the proteins takes place, right? So partially it takes place in rough endoplasmic reticulum, and the rest of it takes place in your smooth endoplasmic reticulum or this Golgi body, sorry, right? So here this empty space, okay, the lumen, that is filled with such iodized glycoprotein, and this glycoprotein is called thyroglobulin. Clear? Thyroglobulin. From the name you can say in at the end means it is a protein. Fine. Then thyro, because it is related to a thyroid gland. And globulin means a globular protein or a spherical protein. Clear? So thyroglobulin will be present here in the lumen. Because there is a lot of protein present here, it looks like a colloid. In chemistry, you must have studied colloids, right? So it looks like a colloid, and hence this thyroglobulin, okay, the lumen, it is known as filled with colloid. It is only endocrine gland that stores its hormone in inactive state. Normally, we have studied the characteristics of hormones that they are not stored in the body. Whenever they are required, they will be synthesized and secreted. Thyroid hormone is the only exception. Clear? Thyroid hormone is an exception. You can store thyroid hormone in this colloid in inactive state. We shall understand this
statement later on as we keep on discussing your thyroid gland. Okay, you will realize what I'm trying to say. Fine. Just once again focus on this diagram. So this is one follicle, the cuboidal glandular cells or follicular cells. Then you have in between loose connective tissue. This connective tissue also has blood vessels, as you can see here. Wherever there are RBCs shown, those are your blood vessels. Apart from your RBCs, you can even see these other cells which are present outside your follicles. These are called parafollicular cells. Okay, so they are present outside the follicle inside the stroma or inside your loose connective tissue. Clear? Parafollicular cells are found in interstitial tissue. Remember this term also, interstitial, because some of these terms, keep on repeating. Like we will even study this term interstitial in your gonads. Okay, in case of testis, if you know there are interstitial cells, so you should know what interstitial means. It means in between. Fine. So parafollicular cells are found in this interstitial tissue, which is the tissue in between the different follicles. What do they do? Okay, so these cells, the parafollicular cells, they secrete a hormone called thyrocalcitonin or just calcitonin. Fine. Now this is how the thyroid gland secretion is regulated. You have the topmost regulation is by hypothalamus. Hypothalamus secretes your releasing hormone called thyrotropin releasing hormone, TRH. This TRH will go to the anterior pituitary through your portal system. After reaching the anterior pituitary, it will stimulate the pituitary to release thyroid stimulating hormone, TSH. Okay, stimulating hormones always belong to pituitary, releasing hormones belong to hypothalamus. Now, this thyroid stimulating hormone will stimulate the thyroid gland to synthesize as well as secrete thyroid hormone. Now, this thyroid hormone can be in either of these states. Okay, it can either be a T4 hormone or a T3 hormone. Both of these are one and the same. Even if T4 hormone is secreted, it is converted into T3, which is the active form of the hormone. Fine, so this T3 hormone is the thyroid hormone or thyroxine. Clear? Now, as you can see, how will you control? Like, how does your thyroid gland know that now it should stop secreting thyroid hormone, right? So it knows this by feedback regulation. That is, this thyroid hormone can go and inhibit your hypothalamus. Inhibit matlab it will not allow the hypothalamus to secrete more TRH. If more TRH is not secreted, TSH will not be secreted and thyroid will not be stimulated. So more thyroxine will not be secreted. Yeah, this is how it regulates. This T3 can even go and inhibit your anterior pituitary. That it will tell anterior pituitary to no longer synthesize more TSH. Clear? So many of these hormones, they do this kind of regulation, which is called inhibitory feedback, or better term for it is negative feedback inhibition. Negative, why? Because the product, okay, here the product or the final hormone is your thyroid hormone. This thyroid hormone or the product itself is going and inhibiting the previous steps. Okay, so it is called feedback regulation. Okay, so this hormone, when the concentration rise above a certain level, it will go and give feedback to pituitary and hypothalamus to stop secreting this hormone. Clear? And this is how the regulation of thyroid gland secretion is seen. Now let us understand the structure of thyroid hormone. Okay, so thyroid hormone is known as thyroxine or tetraiodothyronine. Tetra means 4, iodo means iodine, thyronine. So thyroxine or tetraiodothyronine. It is derivative of tyrosine amino acid. So this here is your tyrosine amino acid.
Remember from biomolecules that you can draw your basic structure of the amino acid, okay? And in your R group, okay, you have the CH2, then the whole phenol ring. Phenol, I hope you know. Phenol is your benzene ring. So this will be your benzene ring. And on the top, you have one OH, okay, hydroxyl group or alcohol group. So this is present in your amino acid. Then that amino acid is known as tyrosine. Fine. So tyrosine amino acid can be made into thyroxine hormone. Fine. Thyroxine hormone is known as T4 or tetraiodothyronine. This 4 is showing the number of iodine atoms. Okay. Same way as I told you, there is T3 also, which is the active form of hormone. T3 means it has 3 iodines. So it is called triiodothyronine. Clear? Um, First, just let us understand this structure only. Chala. So, when we were discussing different types of hormones based on their chemical structure, we have seen that there could be some hormones which are amino acid derivative, right? So, thyroxine is one of such amino acid derivative. Now, what happens is, as you can see, there is one molecule of phenol and one more molecule of phenol. Clear? So, there will be two tyrosine amino acids, okay, and they form this structure. And so here you have two benzene rings. This is number one, this is number two, and they are joined with this oxygen, okay, the bond. On the end, it still has this OH group, which can be seen here. Fine. So two tyrosine molecules that come together to form your thyroxine. Now, after this molecule has formed, there is iodination which takes place. Iodination is addition of iodine atom. Okay, you must have studied in your organic chemistry, right? Chlorination, fluorination, right? Halogenation in common. So this is that reaction. So here the iodine atoms are added. If there are 4 iodine atoms, it is called tetraiodothyronine. If there are 3, then it is called triiodothyronine. Fine. So this is all about the structure. Now secretion of T4 is more compared to T3. So this tetraiodothyronine or T4 or thyroxine, all of these are the name of the same compound. So it is secreted more compared to T3. But when you look at the activity, T3 is more active compared to T4. How much times more active? So it is 4 times more active than your T4. So what happens then? So your thyroid hormone will be secreted more in this T4 form. Whenever it reaches the target cell, it gets converted into T3. It will release one iodine. It gets converted into triiodothyronine, and this T3 is the active hormone, right? So then it will show its um, further function effect. Sufficient amount of thyroid hormones are stored in form of thyroglobulin. Remember the colloid we saw in the follicles, right, which is made up of thyroglobulin. So in this thyroglobulin, a lot of such inactive forms of thyroid hormone are stored. And how much is stored? So the storage is enough to last us for 3 months. Okay, so for 3 months, you can have enough thyroid hormone stored in your thyroid gland, in your follicles. Fine. Thyroid gland requires 120 milligram of iodine every day. This is why you have iodinated salt or iodized salt. You must have heard of this, right? Tata namak, desh ka namak, ya Tata namak, iodized namak, right? So why is this namak iodized? Because normally iodine is not found in our food. Our normal vegetarian diet rarely has any iodine in it. So what happens? This is called fortification. Okay, fortification means you add some nutrients, you add some minerals
to some common food, right? So here the common food is salt because everybody eats salt, everybody uses salt every day, right? And so they added iodine into this salt so that when you eat food every day, this iodine can reach your body and your thyroid gland can function properly. Fine. So this much iodine is required every day, and the thyroglobulin stored in your thyroid gland can supply thyroxine hormone for at least 3 months. Now, this is how it is synthesized and secreted. The whole procedure is not important with exam point of view. That is, no question can be asked from these steps. Okay, but this is important for you to understand. When you understand this clearly, you will be able to remember everything. Okay, and you will be even able to apply and solve the questions. तो चलो शुरुआत करते हैं. You have first thing, let us talk about this. So this blue colored cell that you see is your thyroid follicular cell. हमने बात करी थी ना कि thyroid follicle जो है उसमें cuboidal cells होते हैं, glandular cells होते हैं. So that is also called thyroid follicular cell, which is this. उसके बाद अंदर का जो lumen था, which we even said has colloid, which is shown here. Okay, this thyroid follicle, and it has lumen in between. तो ये जो खाली जगह है that is shown in this light pink color. और उसके बाहर on the left side what is shown is your blood vessel. ठीक है? So now let us understand. What happens is in your thyroid follicular cell, nucleus में से आएगा mRNA. mRNA में से on the endoplasmic reticulum. ठीक है? इसके ऊपर आप देख सकते हो rough endoplasmic reticulum. So from this rough endoplasmic reticulum, it will start synthesizing the protein which is called thyroglobulin. ठीक है? ये thyroglobulin, why is it special protein? Because it has a lot of tyrosine. है ना? हमको थायराइड हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? थायरोसिन ही चाहिए. तो दिस टाइरोसिन वो ऐसे ही फ्री टाइरोसिन नहीं होता है. ओके, दिस टाइरोसिन इज एक्चुअली फाउंड इन योर प्रोटीन विच इज कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन. तो आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सिंथेसाइज हुआ है थायरोग्लोबुलिन, इट विल आल्सो रीच योर गोल्जी बॉडी. इट इज पैकेज्ड और पैकेजिंग होके उसका एक्सोसाइटोसिस होगा. जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो ये जो आपको थायरोग्लोबुलिन दिखाया है ना, इसमें जितने भी आपको देख रहे हैं दे आर ऑल टाइरोसिन मॉलिक्यूल्स एंड दिस लाइन इज शोइंग यू द पेप्टाइड ऑफ द प्रोटीन. क्लियर? पॉलीपेप्टाइड. सो ये एक्सोसाइटोसिस होगा तो जो भी अंदर प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन है दैट इज ऑल सिक्रेटेड आउटसाइड इन द लूमेन, जो थायराइड फॉलिकल का लूमेन है. क्लियर? नाउ वी हैव द टाइरोसिन रेडी. अभी क्या होगा? नाउ यू रिक्वायर आयोडीन. अभी टाइरोसिन पे आयोडीन डालना है ना. सो दिस आयोडीन ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर ब्लड. कैन यू सी दिस? I minus is your iodine. तो आयोडीन आएगा. इट इज टेकन अप बाय योर थायराइड फॉलिकुलर सेल. वो आयोडीन अंदर आ गया अभी फॉलिकुलर सेल में. नाउ दिस आयोडीन इज अगेन टेकन आउट, ओके, इनटू द लूमेन. वो लूमेन में डाला जाता है. अभी लूमेन में क्या हो गया? यू हैव आयोडीन एंड यू हैव टाइरोसिन ऑन थायरोग्लोबुलिन. तो इस जगह पे आयोडीनेशन होगा. आयोडीनेशन मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन. आयोडीनेशन हो गया तो आप देख सकते हो उसके ऊपर ये जो पर्पल पर्पल आपको डॉट्स दिख रहे हैं दे आर आयोडीन. फाइन. अभी ये आयोडीन लग गया, उसके बाद दो टाइरोसिन मॉलिक्यूल्स जो है वो साथ में आके ऐसे बनाएंगे. हियर दिस वन विच यू आर सीइंग इज योर T3 T4, राइट? इसके पास चार है, 1 2 3 4. एंड एट द बॉटम व्हाट यू आर सीइंग इज T3 क्योंकि इसके पास 3 है आयोडीन, 1 2 और 3. सो नाउ दिस थायरोग्लोबुलिन इज आयोडीनेटेड. अभी उस पर आयोडीन सब डाल दिया है सभी जगह पे. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दिस आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन. ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन पूरा प्रोटीन है जिसके ऊपर आयोडीन डाल दिया है. दिस इज अगेन टेकन बैक बाय योर फॉलिकुलर सेल. इसका एंडोसाइटोसिस होगा. एंडोसाइटोसिस होने के बाद इसका डाइजेशन होगा. तो डाइजेशन में क्या होगा? प्रोटियोलिसिस. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. ये प्रोटीन जो है पूरा थायरोग्लोबुलिन जो है इसको तोड़ दिया जाएगा.
जब तोड़ोगे तो ही तो आपका थायरॉक्सिन फ्री होगा, राइट? सो जब तोड़ दिया जाएगा तो ये एक्स्ट्रा सारे पेप्टाइड आ गए और ये आपका थायरॉक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन फ्री हो गया, एंड दीज आर नाउ रिलीज्ड इनटू द ब्लड। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपका थायराइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होता है एंड सिक्रीट होता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थायरोग्लोबुलिन, और वेयर आयोडीनेशन टेक्स प्लेस, व्हाई इज आयोडीन इम्पोर्टेंट, और ये टाइरोसिन के डेरिवेटिव है। ऑल ऑफ दिस बिकम्स क्लियर फ्रॉम दिस वन प्रोसेस। हो गया ना आपको क्लियर? अभी हर एक चीज आपको याद रखनी जरूरी नहीं है, बट बिकॉज आई टॉट यू दिस यू विल बी एबल टू रिमेम्बर क्वाइट वेल कि इसमें टाइरोसिन होता है, टाइरोसिन पे आयोडीन लगता है, दो टाइरोसिन के मॉलिक्यूल साथ में बनके आपका थायराइड हार्मोन बनाएंगे। नाउ इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन ग्रोथ। ये थायराइड हार्मोन जो है इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जस्ट लाइक योर ग्रोथ हार्मोन। जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए जरूरी है, वैसे थायराइड हार्मोन भी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट फंक्शन, डाइजेशन, ब्रेन डेवलपमेंट। ये बात याद रखना है ना, जिन बच्चों में अगर थायराइड हार्मोन की कमी होती है देन उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो सकता। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा, अभी तो डालते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि टाटा नमक देश का नमक, और टाटा नमक खाए तो बच्चा स्मार्ट बनेगा और ये सब, राइट? तो why are they telling this? Because if you eat iodine, right, then that iodine goes to your thyroid gland, and thyroid gland can make thyroxine or your thyroid hormone. तो ये थायराइड हार्मोन जो है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तभी, देन फॉर द बोन हेल्थ ऑल्सो, एंड फॉर प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन। So for all of these very important functions, you require thyroid hormone, which is T3 and T4. उसका तीसरा हार्मोन जो वो सिक्रीट करता है वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसका बोन हेल्थ और किडनी के साथ क्या रिलेशन है। But let us study the effects of T3 and T4 first. So effects of thyroid hormone on your metabolism. Thyroxine regulates basal metabolic rate, which is called BMR. ठीक है, basal metabolic rate। ये basal metabolic rate क्या चीज है अभी? तो basal तो आप समझ सकते हो, it is base, right? Metabolic rate मतलब something divided by time। इधर something क्या चीज है? तो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म कितनी स्पीड से हो रहा है तो वो उसको आप रेट बोलोगे। So BMR refers to the minimum amount of energy that our body requires to complete its normal function, and this BMR is written in calories। ठीक है, तो जो भी हमारे बॉडी को काम करने के लिए बेसिक मिनिमम अमाउंट जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलेंगे BMR। क्लियर? द हार्मोन enhances oxidative metabolism। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, तो रेस्पिरेशन इज योर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो ये जो थायराइड हार्मोन है इट विल इंक्रीज दिस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होगा तो हमने पढ़ा है कि एक ग्लूकोज को अगर आप फुल्ली ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कितनी ज्यादा एटीपी मिलती है, राइट? एंड हेंस इफ यू डू ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म द एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, and therefore it is also called कैलोरीजेनिक हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कैलोरीजेनिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन। कितनी सारी कैलोरीज, कैलोरीज किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? तो फॉर एनर्जी। ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक हाउ जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एसआई यूनिट है, ये हमारा नॉर्मल यूनिट कैलोरी बोलते हैं, ओके, इन बायोलॉजी। So this calorie it is creating all of this energy, so it is also known as calorigenic hormone। अगर BMR बढ़ गया मतलब आपका basal metabolic rate, the speed at which your body is synthesizing ATP or your body is doing its metabolism, अगर BMR ये जो है वो बढ़ गया then your body temperature will also increase। क्यों? तो हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे ये भी देखा था कि टोटल एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की बोले तो उसके पास होती है 686 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, लेकिन हमको जो मिल रही है इन द एंड
that is only about some 30-40%, राइट? तो बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है, वो भी मैंने आपको बताया था कि द रेस्ट ऑफ द एनर्जी was given out in form of heat. तो जब आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, है ना, आपकी बॉडी ज्यादा मेटाबॉलाइज कर रही है सब चीजों को, तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. एंड बिकॉज ये ज्यादा एटीपी बना रही है, ज्यादा एनर्जी बना रही है, तो इट इज यूजिंग अ लॉट ऑफ फैट, इट इज यूजिंग अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, तो इसलिए वेट लॉस भी दिखेगा. ओके, इफ द बीएमआर इंक्रीजेस, it increases the number of mitochondria in all the cells of the body. अभी थायराइड हार्मोन क्या करेगा, it will increase the number of mitochondria in the cells. माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो ही आपका ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, है ना, तो इट विल इंक्रीज दिस नंबर. और क्योंकि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारा, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो इट इज इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा कंज्यूम होगा. फॉर CNS, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए वो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन का रोल प्ले करता है. एंड फॉर गोनाड्स, that is testis and ovaries, it regulates different functions, especially in case of ovaries it regulates the menstrual cycle. तो इसलिए भले ही आपको ये इतना सिंपल हार्मोन लगता हो कि ओके तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखता है, तो ये गलत बात है. वो बहुत ज्यादा फंक्शंस करता है. ओके, इट इज important in growth and development, it is important in metabolism, and it is also important in functioning of some different organs. ठीक है, अभी देखो, on the right hand side is the diagram, focus on this diagram now. Fine. If T4 enters तो T4 को T3 में कन्वर्ट किया जाएगा. अगर T3 एंटर करता है तो वो तो अपने आप से हो सकता है. ठीक है, now because of the iodine and because of its structure, वो बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर है ना, दो, तो इट इज नॉन पोलर, आई मीन छोटा मॉलिक्यूल है, और वो इजिली जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाएगा. When we studied plasma membrane, I had discussed कि small gaseous जो भी molecules है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो आराम से सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं. देन स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं, राइट. लिपिड्स जो होते हैं छोटे, उनको भी अंदर बाहर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है ट्रांसपोर्टर की. तो सेम वे your thyroid hormone does not have a transporter or a receptor on the cell membrane. वो सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको आराम से क्रॉस कर देगा. सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद वो एंटर करेगा आपके न्यूक्लियस में. अभी हमने दो टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े थे. वन वी हैड सीन वेयर द रिसेप्टर वाज ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन रिसेप्टर था, मेम्ब्रेन बाउंड. एंड द सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैड सीन कि उसका रिसेप्टर जो होता है इट इज इंट्रासेल्युलर. तो ये देख लो, ये थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर जो है इट इज फाउंड इन योर न्यूक्लियस. जैसे ही ये थायराइड हार्मोन आके ये न्यूक्लियस के रिसेप्टर में बाइंड करेगा, एज यू कैन सी हियर, ये हार्मोन आके बाइंड हुआ, तो कुछ जीन्स जो है ना, वो कुछ जीन्स में से आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा. एमआरएनए जो है वो बाहर जाके उसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ये नए प्रोटीन्स जो बनेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा कंट्रोल कर रहा है. सो दिस इज हाउ द ग्रोथ विल आल्सो टेक प्लेस. नए प्रोटीन्स बनेंगे तो ग्रोथ होगा. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, कार्डियोवास्कुलर मतलब आपके हार्ट का डेवलपमेंट या फंक्शनिंग है, तो वो भी इसी हिसाब से होता है. लाइक इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, आपका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर सकेगा. इंक्रीज अ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक ब्लड पहुंचना चाहिए, तो ये काम भी आपका थायराइड हार्मोन कर सकता है. ठीक है, हार्ट रेट जो है, मतलब हार्ट बीट, आपने पढ़ा होगा 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो उसको इंक्रीज करने का काम थायराइड हार्मोन करेगा. फिर मेटाबॉलिज्म की बात करो तो मेटाबॉलिज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन बढ़ा रहा है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है. तो ये सब चीजें जो है वो दे आर इफेक्ट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन. Specifically talking about fat, carbohydrate and proteins, let us start with fats.
It enhances enzyme activity of both synthesis and catabolism. ठीक है, वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों की एंजाइम एक्टिविटी को प्रमोट करता है, बट प्रीडोमिनेटली मतलब सबसे ज्यादा वो क्या काम करेगा, इट विल डू और इट विल स्टिम्युलेट द कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल जो पड़ा हुआ है उसको तोड़ने का काम करवाएगा कौन, थायराइड हार्मोन. देन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर. वो ब्लड शुगर जो है लेवल उसको इंक्रीज करवाने का काम करेगा. क्यों? क्योंकि आपकी सेल की बीएमआर बढ़ानी है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है. तो कैसे बढ़ेगा? यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ब्लड में से ही लेते हैं सारे सेल्स. तो ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज कराएगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज डायाबीटोजेनिक हार्मोन. हमने क्या दो नाम पढ़े इसके? थायराइड हार्मोन को हम बोलते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन. जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस. जेनेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस. ओके, तो कैलोरीज ज्यादा बनाता है, मतलब एटीपी बनाता है, राइट, एनर्जी बनाता है. एंड सेकेंड थिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड डायबिटोजेनिक, क्योंकि डायबिटीज में क्या होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज, है ना. तो उस जैसी कंडीशन आपको लगेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डायबिटिक, डायबिटोजेनिक हार्मोन. क्लियर? याद रखो, इससे डायबिटीज होता है ऐसी बात नहीं है, बट वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, इसलिए इसको डायबिटोजेनिक बोलेंगे. देन प्रोटीन, दिस डायबिटोजेनिक वी हैव आल्सो सीन इन ग्रोथ हार्मोन, राइट. तो कई सारे हार्मोन्स है जो ऐसे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम. फाइनली प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में वो कैटाबॉलिज्म भी करवाएगा. कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाएगा. और फिर एनाबॉलिज्म भी करवाता है, मतलब कुछ कुछ ऑर्गन्स है, कुछ कुछ एरियाज है, उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाएगा, बट एट ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन. मतलब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन अगर थायरॉक्सिन का है, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है, देन एनाबॉलिज्म इज डोमिनेंट. मतलब ज्यादा प्रोटीन बन ही रहे हैं, टूटना प्रोटीन का कम हो रहा है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म. अभी बात करते हैं कुछ चीजों की जिसमें देर इज सम प्रॉब्लम विद द सिक्रीशन, है ना. या तो थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है या कम सिक्रीट हो रहा है. तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस हाइपो सिक्रीशन. मैंने आपको बताया था हाइपो का मतलब होता है कम, और लो, राइट. हाइपो मीन्स बिलो और लो. सो लो सिक्रीशन या लेस सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. तो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे? ये कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इस टर्म के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीजेस आते हैं, कंडीशंस आते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड गोइटर. अभी तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, लेकिन पहले वो गवर्नमेंट वालों का जनहित में जारी वाला एडवर्टाइजमेंट आता था ना. सो दे यूज्ड टू से कि, आई मीन दे यूज्ड टू इवन शो ऐसे लोगों को जहाँ पे गॉइटर हो जाता है, वैसे फोटोग्राफ दिखा के बोलते थे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, राइट. सो इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अभी हम देखते हैं कि क्यों गोइटर होता है. सो दिस इज योर नॉर्मल थायराइड, और गोइटर वालों में थायराइड जो है वो ऐसे फूल जाएगा, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि आप ऐसे बाहर से भी देख सकते हो. ये देखो, उसका थायराइड ग्लैंड है जो इतना बड़ा हो गया है. तो इतना बड़ा क्यों हो रहा है थायराइड ग्लैंड? देखते हैं हम, चलो. सो इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, अभी आप आयोडीन खा नहीं रहे हो तो आपके फूड में डेफिशिएंसी है. अगर खा नहीं रहे हो, डेफिशिएंसी है, तो आपके ब्लड में भी आयोडीन नहीं है. तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को लगता है कि अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, वो अपने अंदर बहुत सारा ब्लड जो है वो ले पाएगा. बहुत ज्यादा ब्लड जो है उसमें से आयोडीन एब्जॉर्ब कर पाएगा अगर उसकी साइज बड़ी हो गई तो. ठीक है ना. तो वो ऐसा सोच के एकदम फूल जाता है. तो जब ये थायराइड ग्लैंड व्हेन इट swells up, okay, it enlarges, so it is called enlargement of thyroid gland. So when this thyroid gland enlarges, the reason behind enlargement is to absorb more iodine from blood, and this condition is called goiter. ठीक है, वो कोई और चीज की वजह से नहीं फूल रहा है. द ओनली रीजन इज इट वांट्स टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर आयोडीन फ्रॉम द ब्लड. उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं छोटा हूँ साइज में, इसीलिए मेरे से आयोडीन छूट जा रहा है.
एक्चुअली आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो वो बड़ा हो जाएगा कि कुछ छोटी अमाउंट में भी अगर आयोडीन आ रहा है तो वो बच ना जाए, ठीक है, मुझसे, इसलिए वो बड़ा हो जाएगा। इट इज मोर प्रेवेलेंट, प्रेवेलेंट का मतलब होता है मोर कॉमन, इन पीपल हु लिव ऑन माउंटेन स्लोप्स। अभी हियर कम्स सम बेसिक फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो आपको शायद पता हो शायद ना पता हो। आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा आपको सी में मिलता है, ठीक है, सी, दरिया जो होता है उसके अंदर आपको आयोडीन सबसे ज्यादा मिलेगा। तो जो सी के आसपास रहते हैं ना लोग, उनको आयोडीन की कमी नहीं होती। सेकेंड थिंग टू नो इज आयोडीन इज ऑल्सो अ गैस, वो भी एक गैस है, हैलोजन है, राइट। तो वो सी के आसपास जो भी रहते हैं उनको कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब भी सांस लेते हैं तो सांसों में भी कभी कभी आ जाता है इनफ अमाउंट में, ठीक है ना। तो दैट इज वाई द पीपल हु आर लिविंग नियर सी, दे डू नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। लेकिन जो माउंटेन पे रहते हैं, अभी माउंटेन पे आयोडीन बहुत कम जगह पे मिलेगा आपको, है ना, तो उन लोगों को उन लोगों में ये प्रिवलेंट है। when most of the people show symptoms of this disease in some area, है ना, किसी जगह पे अगर लेट अस से सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि लेह लद्दाख की बात करते हैं, तो लेह में बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे गॉइटर हो रहा है, देन उस जगह के लिए उसको बोलेंगे एंडेमिक गॉइटर। एंडेमिक गॉइटर क्यों? जैसे आपने सुना ना पेंडेमिक, जैसे हम कोविड को पेंडेमिक बोलते हैं, वैसे एंडेमिक का मतलब वो एक लोकेलिटी में फैला हुआ कंडीशन है या डिजीज है, ठीक है ना। तो एंडेमिक गॉइटर इज सीन मोस्टली इन माउंटेनस रीजन्स जहाँ पे आयोडीन नहीं मिलता है, तो कई सारे लोगों को ऐसा गॉइटर हो जाता है। individuals who consume seafood, जो भी सी फूड खाता है, right, if you are eating prawns and crabs and fishes, then you are rarely you never have a chance of getting this goiter, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर वेजिटेरियन सोर्स आप पूछे कि मैडम वेजिटेरियन फूड सोर्स में कहाँ से आयोडीन मिलता है, देन द आंसर इज सी वीड। कभी आपने देखा है वो जापानीज क्यूजीन में एक ब्लैक या ग्रीन कलर का पेपर यूज करते हैं सुशी बनाने के लिए, तो उसको सीवीड बोलते हैं। तो वो सीवीड जो है उसमें वो algae है एक टाइप का, एंड इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ आयोडीन फ्रॉम सी। तो वो सीवीड अगर आप खाते हो तो उसमें भी आपको आयोडीन मिल जाएगा। सो बेसिकली दैट कैन ऑल्सो बी कम कंसिडर्ड इन सी फूड। तो जो भी सी फूड कंज्यूम करते हैं उनको आयोडीन की खामी नहीं होती है। And for us, if you eat iodized salt, you will not ever see this goiter, okay, or hypothyroidism. अभी हाइपोथायरॉयडिज्म में सेकेंड टाइप, मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ कंडीशन का नाम है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सिंड्रोम्स बोलो या डिजीज बोलो वो आते हैं। पहला हमने सुना गोइटर, दूसरा है क्रिटिनिज्म। अभी क्रिटिनिज्म क्या चीज है? तो क्रिटिनिज्म इज हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब somebody who is pregnant and has deficiency of iodine. So because of this deficiency of iodine, the baby's thyroid gland will not synthesize thyroid hormone, क्योंकि आयोडीन की कमी है ना। तो this causes defective development and maturation of the baby. तो बेबी का पूरा डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है, बिकॉज देर इज हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। द सिम्टम्स आर स्टंटेड ग्रोथ, जैसे देख सकते हो आप बेबी जो है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है। स्टंटेड मतलब धीरा हो जाना है, या स्टंट इज बेसिकली टू कट डाउन, है ना, तो उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा या फॉल्टी हो जाएगा। देर इज मेंटल रिटार्डेशन, हमने पढ़ा कि थायराइड हार्मोन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ thyroid hormone is not being produced, then there is mental retardation, puffy eyes। नॉर्मली आंखें अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ऐसे पफी मतलब थोड़ा सूजा हुआ लगेगा आपको, आंखें जो है वो। देन डेफ म्यूटिज्म, कई लोगों का कान और फिर बोलने का जो भी होता है, तो डेफ इज दे कैन नॉट हियर एंड म्यूट मीन्स दे कैन नॉट स्पीक, तो ये हो जाएगा। then as you can see from the picture also, what is basically seen as मुंह जो है ना, mouth that will remain open and the tongue will be like this, जैसा आप दोनों पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो this
is the classic sign of cretinism. ऐसे बच्चों को नॉर्मली थायराइड हार्मोन का डोज दिया जाता है, and then once their growth is back to normal, they can be given iodized salt or iodized food, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ नॉर्मल हो सके. The third condition because of hyposecretion of thyroid hormone is called myxoedema. Okay, myxoedema. अभी ये जो होता है, इट इज सीन इन एडल्ट्स, मतलब बड़ी उम्र जो भी होती है जिनकी, उनमें दिखता है आपको. दिस इज ऑल्सो अगेन अ कंडीशन वेयर द थायराइड हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड इन इनफ क्वांटिटी. तो इसको कैसे आप देख सकते हो? यू कैन सी इट इन स्वेलिंग ऑफ फीट. जो फीट जो है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. कभी कभी आपने वो सुना है एलिफेंटियासिस, जो गुजराती में हम बोलते हैं हाथी पगो. तो उस तरीके के आपको लेग्स दिखेंगे, है ना, ऐसा स्केली थोड़ा अपीयरेंस होगा, फूल जाएंगे पैर. तो दिस इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन केस ऑफ मिक्सोडेमा. इसको गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं. इन विमेन the menstrual cycle becomes irregular if there is hyposecretion of thyroid hormone. ये मैंने आपको बताया था कि वो गोनाड्स जो है उस पे भी कंट्रोल रखता है ना. तो menstrual cycle जो है वो irregular हो जाएगी if your thyroid hormone is not secreted in enough amount. ये पेशेंट्स को भी अगर आप प्रॉपर थायराइड हार्मोन की ट्रीटमेंट दोगे then they will become okay. Now, let us discuss hypersecretion. हाइपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्सेस, ज्यादा सीक्रेट हो रहा है. क्या चीज? थायराइड हार्मोन. नाउ व्हाई वुड देयर बी हाइपर सिक्रेशन? ऐसा तो क्या हो गया कि ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है थायराइड हार्मोन का? सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ कैंसर. कैंसर तो आपको पता होगा, इट इज अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल, है ना. सेल जो होते हैं उन पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो डिवाइड करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं. तो आप सोच लो, अगर ऐसा कैंसर हो गया थायराइड में या फिर पिट्यूटरी में, तो क्या होगा? वो अगर पिट्यूटरी में हुआ देन इट विल कीप ऑन सिक्रेटिंग टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और वो थायराइड को स्टिमुलेट करता ही रहेगा कि भाई तू बनाते जा, बनाते जा, बनाते जा थायराइड हार्मोन. इफ दिस कैंसर और नोड्यूल्स आर सीन इन थायराइड ग्लैंड, तो वो भी थायराइड हार्मोन ज्यादा बनाएगा. थायराइड हार्मोन ज्यादा बन गया, देन इट लीड्स टू दिस एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड, जिसकी वजह से आपको ये हाइपर सिक्रीशन के जो भी सिम्टम्स है वो दिख सकते हैं, राइट. दिस हियर इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर. अभी इसको भी गॉइटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस कंडीशन ऑल्सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना. आपकी थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है थोड़ी. क्यों स्वेल हो जाती है? बेचारे को काम कितना करना पड़ रहा है. अभी इट इज सिक्रीटिंग मोर थायराइड हार्मोन देन इट इज सपोज टू. तो उसको काम बढ़ जाता है, तो वो अपनी साइज थोड़ी बढ़ा लेता है टू मेक श्योर कि वो इनफ थायराइड हार्मोन बना सके. तो दिस इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर. अभी हम एक्सोप्थैल्मिक का मतलब समझते हैं. एक्सो मीन्स आउटसाइड, है ना. एंड ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक तो मैंने आपको बताया कि ऑप्थेल्मो जहां भी आएगा उसका मतलब होता है आईज, राइट. सो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ना, पूरे आई बॉल्स बाहर आके आपको लग रहे हैं. सो दिस हियर इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर. क्लियर? और हाइपरथायरॉयडिज्म, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे. हियर देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. उसका रीजन मैंने आपको बताया. प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, प्रोट्रूजन मतलब बाहर निकल के आना. इंक्रीज्ड बीएमआर एंड वेट लॉस. इसका थायराइड हार्मोन जितना ज्यादा बन रहा है उतनी वो ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है टू मेक एटीपी, टू मेक जनरेट हीट. तो वो जितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसके लिए सबस्ट्रेट भी तो यूज होगा ना. तो लॉट ऑफ ग्लूकोज, अ लॉट ऑफ फैट इज यूज्ड, एंड इसकी वजह से आपको वेट लॉस भी दिखेगा. If it is because of some autoimmune response, it can also be known as Graves' disease. अब ये hyperthyroidism को ही Graves' disease बोलते हैं. But sometimes it can also be autoimmune. Autoimmune मतलब आपकी ही बॉडी, आपके ही सेल्स को कुछ अटैक कर रही है, ठीक है. तो इसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं, दे कम एंड दे गेट अटैच टू योर थायराइड ग्लैंड,
और वो थायराइड ग्लैंड को हमेशा एक्टिव ही रखेगा कि आप सिक्रीट करते रहो करते रहो करते रहो. सो दैट इज नोन एज योर ऑटो इम्यून डिजीज. तो उसकी वजह से भी ये हाइपर सिक्रीशन हो सकता है. अगेन इसमें भी सेम, अगर आप नॉर्मल इनका जो कंडीशन है उनको कुछ दवाइयाँ दे के यू कैन ब्रिंग देम बैक टू नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल भी हो सकता है. इट इज नॉट लाइक एन एंड और टर्मिनल इलनेस. ठीक है. Normally these medicine, no, they will be inhibiting at some points. हमने जहाँ पे रेगुलेशन पढ़ा था तो कई सारे पॉइंट थे ना जहाँ से हम इनहिबिट कर सकते, तो वो कोई भी एक जगह पे जाके इनहिबिट करेगा और उस तरीके से काम करेगा. Now we have seen about the follicular cells, and we have also seen the thyroid hormones, which are thyroxine and triiodothyronine. Now let us talk about the parafollicular cells. These cells were found outside the follicles in the interstitial space. So they are found in the stroma. They secrete thyrocalcitonin. Okay, thyrocalcitonin, or which is also known as calcitonin, it lacks iodine. ठीक है, ये थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड बना रही है, बट इट डज नॉट हैव आयोडीन. तो ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है दैट नॉट ऑल ऑफ योर थायराइड हार्मोन्स हैव आयोडीन इन देम. Calcitonin is hormone without iodine. It is a protein. Thyrocalcitonin reduces desorption of bones. Desorption का मतलब होता है बोन में से कैल्शियम निकल के बाहर आना. ठीक है, तो वो कैल्शियम जो बोन में से निकल रहा है उसको कम कर देगा. And increases the rate of excretion of calcium in urine. Thus, it reduces concentration of calcium in extracellular fluid. वो बोन में से कैल्शियम को ब्लड में नहीं आने देगा, और ब्लड में अगर ज़्यादा कैल्शियम हो गया है तो उसको एक्सक्रीट करवा देगा. ठीक है, तो इस तरीके से वो ब्लड में जो भी कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको लोअर करने में हेल्प करेगा. It enhances deposition of calcium in the bones, thus making bones solid and strong. वो बोन के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन करवाएगा. अभी एक बार हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा. ठीक है, लेटस से आपने कुछ कैल्शियम रिच खाना वाना खाया है, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड. अभी एक लेवल से ज्यादा कैल्शियम हो गया तो योर थायराइड ग्लैंड विल secrete calcitonin. ठीक है. Now what will this calcitonin do? It will inhibit the calcium absorption from intestine. अभी आपके खाने में से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा नहीं. क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में ऑलरेडी हाई है, आपके बॉडी में ऑलरेडी हाई है, आपको नहीं जरूरत है. तो इट विल इनहिबिट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन. सेकेंड थिंग, वो क्या करेगा, कहाँ से कैल्शियम आ सकता है, तो नॉर्मली बोन में से टूट टूट के कैल्शियम जो आता है वो ब्लड में एंटर होता है. तो सेकेंड थिंग कैल्सिटोनिन करेगा, वो जो ये एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको पकड़ पकड़ के बोन में डिपॉजिट करवाएगा. सो इट प्रमोट्स दिस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स. तो इस तरीके से वो हड्डियां जो है आपकी बोन्स उसको मजबूत बनाएगा. एंड द थर्ड थिंग, वो अभी भी अगर कैल्शियम बढ़ा है ना, वो ब्लड में इफ देर इज स्टिल हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, दिस विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. तो वो कोशिश क्या कर रहा है, वो कोशिश ये कर रहा है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो सके. ठीक है, नॉर्मल लेवल तक आ सके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड. ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड. अभी आप सोच लो ये बीच में ट्रेकिया आ जाएगा, और ये जो थायरॉयड ग्लैंड है अगर उसको आप पीछे से देखोगे, then you will find these four which are shown in yellow color. ठीक है, तो these four are your parathyroid glands. It is endodermal in origin. There are two pairs. ये दो जोड़ियां होगी, so two pairs. Embedded मतलब उसके अंदर fixed है. On the dorsal surface, dorsal का मतलब होता है पीछे की तरफ, of thyroid gland. These secrete only one hormone which is called parathormone. Parathyroid gland, parathormone. ठीक है, PTH. This hormone is polypeptide in nature. Parathormone का क्या रोल है? It is essential for survival because it contributes to homeostasis. Homeostasis एक बार नाम इसका मीनिंग समझ लो आप. Homeostasis means balance. सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर आपको बोलना हो, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बैलेंस. ठीक है, इक्विलिब्रियम.
तो जैसे कि कोई भी चीज हो आपके बॉडी के अंदर हमेशा वो एक परफेक्ट बैलेंस में हो तो अच्छा है, राइट? सो वैसे ही आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम है, फॉस्फेट है, तो वो ब्लड में एक लेवल तक ही होने चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस जो है स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फेट का, दैट इज मेंटेन्ड बाय योर पैराथ हार्मोन, सो इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ अभी हम कैल्शियम की इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, व्हाई इज कैल्शियम इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? सो फर्स्ट थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है। सेकेंड थिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा और ये कैल्शियम जाके बाइंड करेगा आपके जो प्रोटीन्स है, मसल प्रोटीन्स, राइट, ट्रोपोनिन को बाइंड करेगा और फिर ही मायोसिन एक्टिन के ऊपर जाके अटैच हो सकेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, दैट आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम। देन नर्व इम्पल्स कंडक्शन, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में जो एंड टर्मिनल जो होता है, एक्सॉन टर्मिनल, तो उधर एक्सॉन टर्मिनल पे यू रिक्वायर कैल्शियम फॉर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, वो कैल्शियम जाके वेसिकल की फ्यूजन करवाएगा विद द साइनैप्स, ओके, साइनैप प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, एंड इफ दैट फ्यूजन टेक्स प्लेस देन ओनली द न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी रिलीज। तो वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट बीट, अभी ये आपको पढ़ने में नहीं आता है, बट योर हार्ट बीट, ओके, इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय कैल्शियम, क्योंकि हार्ट जो है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मसल, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जहां पे भी आएगा उधर आप कैल्शियम इजिली लिख सकते हो। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उसमें कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन बोन फॉर्मेशन, आपके बोन्स जो है, टीथ जो है, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, राइट, कैल्शियम फॉस्फेट। देन एपेटाइट, एपेटाइट मतलब वो खाने वाला एपेटाइट नहीं, बट इन केमिस्ट्री आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड फ्लोर एपेटाइट, राइट, तो द फ्लोर एपेटाइट जो होता है दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम। देन इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा और ओवम, एग सेल जो है उसका फर्टिलाइजेशन होने के लिए भी कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट। इट इज मोस्ट abundant of all minerals found in the body। अगर आपके बॉडी में हमने जैसे बायोमोलिक्यूल्स के टाइम पे किया था ना एनालिसिस, कि आपके बॉडी को ले लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है, हमने एक ह्यूमन बॉडी को लिया, उसका सारा ऑर्गेनिक मैटर हमने जला दिया, ठीक है, तो जलाने के बाद क्या बचेगा? ऐश। अगर ये ऐश में से आप फाइंड आउट करो कि कौन कौन सा मिनरल है, तो सबसे ज्यादा, सबसे अबंडेंट मिनरल जो होगा दैट विल बी कैल्शियम। कितना? अबाउट 99%। उसके बाद फॉस्फोरस भी आता है इन बोन्स, ठीक है, तो 99% इज कैल्शियम। तो अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव का या किसी की अस्थियां अगर आपने सुनी हो, तो अस्थियां जो होती है, द टर्म ओनली अस्थि कम्स फ्रॉम द टर्म योर बोन, ओके, बोन इज नोन एज समथिंग सिमिलर इन गुजराती एंड हिंदी, उसको कुछ अस्थि वस्थि जैसा ही कुछ बोलते हैं, तो बोन में से ही बचता है एशेस, तो वो ऐश को हम अस्थि बोलते हैं, ठीक है, तो इट हैज 99% कैल्शियम। प्रॉपर कैल्शियम लेवल्स, या जिसको हमने नाम दिया है होम्योस्टैसिस, इज मेंटेन्ड बाय पैराथ हार्मोन, जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन, फिर थायरोकैल्सिटोनिन या सिर्फ कैल्सिटोनिन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड, एंड विटामिन डी3। डी3 जो है विटामिन डी3, इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और इसको बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। ऑल आता है, इसका मतलब है इसमें अल्कोहल ग्रुप है। एक्चुअली विटामिन डी जो है वो कोलेस्टेरॉल में से बनता है, इसलिए इसका नाम है कोले। और कैल्सी, कैल्सी बिकॉज वो कैल्शियम में, कैल्शियम होम्योस्टासिस में इंपॉर्टेंट है, तो कोले कैल्सीफेरॉल, इस तरीके से याद रहेगा। विटामिन डी कोलेस्टेरॉल में से बनता है, काम क्या करता है? कैल्शियम होम्योस्टासिस मेंटेन करना, दैट इज नोन एज कोले कैल्सीफेरॉल। चलो अभी हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनिन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अभी कोई भी चीज है, जैसे कि हमने कैल्सिटोनिन में बात की, तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा? इट इज
मेकिंग श्योर कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो जाए या वो एक्सक्रीट हो जाए, है ना, और ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो। पैराथॉर्मोन जो है इट इज डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट। इट इज मेकिंग श्योर कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, सो इट इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। अगर कहीं पे भी ऐसा टर्म आप पढ़ते हो, एमिक, AEMIC, राइट, तो AEMIC का जहां पे भी मीनिंग मतलब आएगा पीछे, तो इसका मतलब होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, एमिया, एमिया जहां पे भी आएगा वो उसका मीनिंग ही होता है ब्लड के अंदर आप बात कर रहे हो। सो हाइपर मतलब हाई, कैल्शियम मीन्स कैल्शियम, और एमिया हाइपर कैल्सीमिया इसको बोलते हैं कंडीशन को। तो हाइपर कैल्सीमिया मतलब हाई ब्लड कैल्शियम। जो हाई ब्लड कैल्शियम लेवल्स कॉज करता है तो उसको बोलेंगे हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन दैट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। हाउ डज इट इंक्रीज? इट इंक्रीजेस दिस बाय स्टिम्युलेटिंग बोन रिसॉर्प्शन। अभी बोन जो है, हड्डियां जो है, उसको तोड़ेगा और उसमें से जो भी कैल्शियम होगा उसको रिलीज कर देगा ब्लड के अंदर, जिसको रिसॉर्प्शन बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं, या डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप मिनरल जो भी कैल्शियम जो भी है आपके बोन्स के अंदर उसको निकाल रहे हो। So this action is also you might have read it under osteoclast activity. Osteoclast are cells which eat the bone and release calcium. ठीक है, तो वो क्या करेगा, osteoclast activity increase कर देगा, इसलिए आपका bone resorption होगा, bone में से calcium निकल के blood में आएगा। It promotes absorption of calcium from food. जो भी आप खाना वाना खा रहे हो उसमें से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अभी आपने बॉर्नवीटा की या ऐसे कोई ऐड में पढ़ा होगा कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कैल्शियम तो खा रहे हो लेकिन विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो आपको ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड में से, खाने में से, वो नहीं हो सकेगा। तो इस जगह पे विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड। फूड में से कैल्शियम जब एब्जॉर्ब करना है तब। इट प्रमोट्स रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन्स। भी नेफ्रॉन्स का भी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन्स जो है, ओके, इन योर किडनी, तो उसमें से जो भी फिल्ट्रेट होगा तो फिल्ट्रेट में से इट विल मेक श्योर कि कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो जाए, वो यूरिन में एक्सक्रीट ना हो। तो ये तीन तरीके से वो बढ़ा रहा है आपका ब्लड कैल्शियम लेवल। दिस कैल्शियम इज यूटिलाइज्ड बाय बोन फॉर्मिंग सेल्स, and this bone formation can occur in under influence of vitamin D3। अभी ये इतना सादा पैराथॉर्मोन जो है वो मतलब विलन नहीं है, ये बात भी जाननी जरूरी है। वाई इज इट नॉट अ विलन? ये ट्राई क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़े। ये कैल्शियम बढ़ा के करेगा क्या? ये कैल्शियम जो है वो जिस बोन को मजबूत बनने में या बड़ा होने में जरूरत है, wherever the calcium is important for bone mineralization, उधर तक ये कैल्शियम पहुंच सकेगा। इसीलिए वो ये सब कर रहा है ना, इसीलिए इट इज इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। ठीक है, तो दिस कैल्शियम इज यूटिलाइज्ड बाय बोन फॉर्मिंग सेल्स जिसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, एंड दैट इज हाउ द बोन्स विल फॉर्म अंडर इफेक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन। तो ये हो गया कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन का बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस है, होम्योस्टैसिस है, जहाँ पे कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल आपको दिया गया है, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर, लेकिन नॉर्मली 10 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए आपके 100 ml ब्लड में। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेवल है। अगर ये नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाता है, फाइन, इफ द ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीजेस, तो डिक्रीज की वजह से क्या होगा, देर इज सॉरी, इधर है, ओके, हियर द फॉलोइंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स, the following blood calcium levels they will ask the parathormone। ठीक है ना, पैराथॉर्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगी जब कैल्शियम लेवल कम है। कैल्शियम कम है तो वो बनाएगी पैराथॉर्मोन। दिस पैराथॉर्मोन विल गो एंड इट विल स्टार्ट रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, तो वो कैल्शियम बोन में से निकालेगा, एंड इट विल
टेल द किडनीज टू एब्जॉर्ब ईच एंड एवरी बिट ऑफ कैल्शियम। हर एक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है, कोई भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो वो किडनी में से भी एब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम का। और लास्ट थिंग इज फूड में से, अगर आपके फूड में कैल्शियम है तो वो फूड वाला कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो सकेगा बिकॉज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अभी सभी जगह से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर करके आप ब्लड के अंदर डाल रहे हो तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड इट कैन रीच द नॉर्मल लेवल। अगर द स्टिम्युलस मतलब ये ओवरशॉट कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही कैल्शियम लेवल बढ़ गया ब्लड के अंदर, सो दिस राइजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल विल टेल द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट करेगा विच विल गो टू योर किडनीज। किडनी को बोलेगा कि भाई अपने पास बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तुम एक्सक्रीट कर दो। तो वो कैल्शियम में से रीअपटेक नहीं करने देगा, है ना, फिल्ट्रेट में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, वो एक्सक्रीट कर देगा कैल्शियम को। इट विल टेक ऑल ऑफ दिस कैल्शियम एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर बोन्स। ओके, डिपोजिशन करवाएगा बोन के अंदर कैल्शियम का, and this is how the blood calcium level will decrease and they will reach the normal level. तो ये हो गया calcitonin and parathormone का function to maintain your calcium levels. अभी there are conditions where there is hyposecretion of parathormone. समझ लो आपके बॉडी में पैराथॉर्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है। Then the amount of calcium decreases in the extracellular fluid. अभी ये ECF का मतलब होता है extracellular fluid, है ना। इसमें ब्लड भी आप कंसिडर कर सकते हो और टिश्यू के आसपास का जो फ्लूइड होता है उसको भी कंसिडर करते हो। तो जब भी पैराथॉर्मोन विल नॉट बी सिक्रीटेड और इज सिक्रीटेड इन लेस कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज ही होता जाएगा। पैराथॉर्मोन का काम क्या है? ब्लड लेवल में कैल्शियम को इंक्रीज करना, लेकिन अभी वो तो है नहीं, तो आपका ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो फॉस्फेट ज्यादा हो रहा है, फॉस्फेट ज्यादा होगा, आई मीन सॉरी, फॉस्फेट कम हो रहा होगा देन कैल्शियम ज्यादा। तो ऑलवेज फॉस्फेट एंड कैल्शियम आर इन ऑपोजिट पाथ। ओके, अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो इसका मतलब फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा हो रहा है ब्लड के अंदर। Now, due to deficiency of calcium in blood, the muscle and nerves start convulsion. अभी कैल्शियम है नहीं, है ना, ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, आपकी नर्वस सिस्टम को और मसल को इनफ कैल्शियम नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिलेगा तो कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन मतलब ऐसे खींच, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बेसिकली I will show you in the video. Wait, okay? And cramping will start. So let us see. This is called a convulsion. इसको एपिलेप्सी या कन्वर्जन या आपने कुछ सुना हो इसके बारे में, तो इस तरीके से आपकी सीजर्स आते हैं। सीजर्स सुना है कभी? तो सीजर्स जो है दे कैन अकर इफ योर ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप्स। ये हो गया मसल क्रैम्पिंग। कभी अगर आपने बहुत ज्यादा रनिंग की है, एक्सरसाइजिंग की है, तो आपने देखा होगा कि मसल जो है वो अपने आप से ऐसे हिलते डुलते दिखते हैं आपको, है ना। तो दिस हियर इज कॉल्ड मसल क्रैम्पिंग। तो मसल क्रैम्पिंग जो है दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन। इसलिए ब्लड में कैल्शियम कम है तो आपका मसल जो है वो क्रैम्प कर रहा है। Sometimes the voluntary muscle remain contracted for a long time. This is known as tetany disease. अभी टेटनी जो है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल इज योर हैंड फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ अ जेस्चर, है ना। हैंड जो है वो इसी तरीके से फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद इट इज नॉट एबल टू रिलैक्स ओनली, वो रिलैक्सेशन ही नहीं हो रहा है, वो हमेशा के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। तो आपको पेन भी होगा एंड दिस इज द पोजिशन इन विच इट विल स्टे फॉर एवर। मतलब फॉर एवर इन द सेंस जब तक नॉर्मल कैल्शियम लेवल नहीं पहुंच जाता तब तक। इफ दिस हैपेंस इन इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल मतलब जो आपके रिब केज है, इफ आई ड्रॉ दिस इज योर स्टर्नम और ऐसे रिब्स होते हैं, राइट, रीढ़ की हड्डियां। तो दिस रिब्स दे हैव इन बिटवीन देम इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं। फिर आपके लंग्स के नीचे एक ऐसा मसल है जिसको आप बोलते हैं डायफ्राम। ये दोनों चीजें जो है वो ब्रीदिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचो आपका हाथ तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ गया,
अब अगर आपके ये इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम के मसल भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होके पड़े रहे, देन द एनिमल कैन डाई बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही है, वो रिलैक्स नहीं हो रहे, देन यू आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन एंड दिस इज हाउ द पर्सन कैन डाई। ठीक है ना। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है, इसलिए इसको कभी भी सिंपल नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम जो है इट इज इम्पॉर्टेंट, खाने में कैल्शियम होना जरूरी है। नाउ एग्जैक्ट ऑपोजिट, हमने देखा हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड में कैल्शियम कम है। द एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। तो बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन, पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या है, वो बोन को तोड़ के कैल्शियम निकालेगा। तो अभी आप देख लो ये नॉर्मल हेल्दी बोन है, लेकिन पैराथॉर्मोन ज्यादा होने की वजह से इट इज डिस्ट्रॉइंग मोर एंड मोर ऑफ योर बोन। तो बोन में ऐसे बहुत बड़े बड़े होल्स हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बोन जो है वो टूट रहा है। सो इट द osteoclast cells feed excess amount of bone unnecessarily। जरूरत नहीं है बट फिर भी पैराथॉर्मोन हाई है, उसका लेवल, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। As a result, the bones become brittle and weak। जैसे chalk stick होता है ना, वैसे chalk stick जैसे thin और brittle हो जाता है and weak। So this condition is known as osteoporosis। Osteo का मतलब होता है bone, porosis का मतलब होता है pore हो जाना, holes, right? तो ये holes आपको दिख रहे हैं। तो osteoporosis जो है it happens because of hypersecretion of parathormone। When quantity of calcium increases in extracellular fluid, the levels of phosphate decrease। ये मैंने आपको बताया था, कैल्शियम अगर इंक्रीज होगा तो फॉस्फेट डिक्रीज होगा, अगर कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है तो फॉस्फेट इंक्रीज होगा, तो ये हमेशा ऑपोजिट ही रहता है। तो दिस इज क्वाइट इजी टू रिमेम्बर, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्योंकि वो ही पैराथॉर्मोन का काम है। अभी now because there is excess calcium, अभी कैल्शियम इतना ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि in your kidneys you will start seeing formation of kidney stones। ओके, किडनी स्टोन्स जो है वो बनना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो ये किडनी के अंदर आप देख सकते हो कई जगहों पे ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। तो दैट इज वन कंडीशन बिकॉज ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। इधर हमने two important glands we have already discussed in this chapter, okay, in this lecture, sorry। We have discussed thyroid gland and a parathyroid gland। thyroid gland जो है it is secreting thyroxine। तो thyroxine has a whole new or a whole different kind of effect and function। उसके अलावा इट इज ऑल्सो सिक्रेटिंग कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का कुछ और ही फंक्शन है, इट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम बैलेंस, इसलिए उसका नाम में भी आप कैल्सिटोनिन समझ सकते हो। ठीक है। फिर आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं पैराथॉर्मोन, एंड पैराथॉर्मोन जो है इट एक्ट्स अगेंस्ट कैल्सिटोनिन, मतलब वो कैल्सिटोनिन के एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करता है। तो आपको अगर एक भी कोई याद रह जाता है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल, है ना। अगर आपको कैल्सिटोनिन याद रहता है तो वो याद रखो और समझ लो कि पैराथॉर्मोन उसका ऑपोजिट है, और अगर पैराथॉर्मोन याद रहता है तो कैल्सिटोनिन उसका ऑपोजिट है। ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन रिमेम्बर। चलो, next time we will start discussing some other endocrine glands। Till then, goodbye।